everyone, I'm Lakshya Mittal and I'm a third year student at IIT Guwahati. So in today's video I'll be telling you about the hostels of IIT Guwahati. I'll tell you my experience that when I was scrolling through a lot of videos on YouTube regarding the girls hostel, I couldn't find any video. Like there was just one or two videos, that too they weren't showing the full hostel and full hostel life culture about how girls live in IITs, different IITs, and particularly IIT Guwahati. Because being a far of IIT, I was very skeptical that whether I will be able to adjust in IIT Guwahati or not, given the fact that it's very far away from my place and the weather is completely different, what kind of accommodation that they give to students. So I searched for a lot of videos, but I couldn't find any regarding the girls hostel. So I feel that I should make this video to help all those girls who have been searching for these kind of videos, and also to the boys कि कैसे कैसे hostels होते हैं. I'll brief कि boys को भी कैसे कैसे hostels मिलते हैं. So this video is going to be focused more on girls, but boys का भी मैं बताऊँगी कि in general what are the facilities that IITG provides to both girls and boys in each and every hostel. So अभी तक IIT में जब से मैं आई हूँ, I have changed around 3 hostels. My first hostel was Lohit, my second hostel was Dhansiri, and my third hostel is Disang, which is a newly built hostel. Lohit was a co-ed hostel. Dhansiri was particularly made for girls, so it wasn't a co-ed hostel. And Disang girls wing, like Disang is a co-ed hostel. I live in Disang girls wing and the boys live in Disang boys wing. So it is also a co-ed hostel. All the facilities are shared by both girls and boys. दो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी HMCs के बीच में लड़ाई हो जाती है that this facilities is not going to be shared by you, this facility is not going to be shared by you. तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, but in general this is a co-ed hostel and we are ought to share all the facilities. तो दिसांग में ये है. लोहित में भी इट वॉज अ कोएड हॉस्टल, बट गर्ल्स को अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं जब वहाँ पे गई थी तो इट वॉज अ सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, बट रूम्स की कमी होने के कारण वी वर बीइंग अलॉटेड डबल शेयर रूम्स, स्पेशली द गर्ल्स. बॉयज़ के साथ ऐसा कभी नहीं होता. फॉर बॉयज़ इट इज़ डबल शेयर, इट इज़ सिंगल शेयर फॉर फर्स्ट ईयर आइट्स, सेकेंड ईयर आइट्स, थर्ड ईयर आइट्स एंड फोर्थ ईयर आइट्स. तो बॉयज़ को हमेशा सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिलता है, बट अभी थोड़ी शॉर्टेज है. तो इस साल कुछ बॉयज़ को, जो फर्स्ट ईयर के बॉयज़ हैं, उनको डबल शेयर मिला है, बट आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल एलिमिनेट और उनको भी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिलेगा. बट दिस इज़ नॉट द कंडीशन विद गर्ल्स. गर्ल्स को डबल ऑक्यूपेंसी मिलता है इन देयर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स दे गेट द सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम. तो लोहित में जब मैं थी तो ऑब्वियसली रूम्स की शॉर्टेज थी, तो दे लाइक फिटेड अस इन दैट सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम. उसके अंदर उन्होंने 2 बेड्स डाले. आई डोंट नो हाउ दे पुट 2 बेड्स इन दैट, और उसके अंदर उन्होंने पूरा फंसा के हमें डाल दिया. तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो गई थी उसके अंदर, बट स्टिल इट हैड अटैच वॉशरूम. सो लोहित वॉज द ओनली हॉस्टल जिसके अंदर अटैच वॉशरूम्स थे. दैट वॉज द प्लस पॉइंट, बिकॉज पहली बार घर से बाहर आई थी एंड आई वॉन्टेड समथिंग टू बी लाइक फुली प्राइवेट. सो अटैच वॉशरूम्स, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट. मेरी रूममेट भी बहुत अच्छी थी. The overall it was a very good experience. The food was also very nice in Lohit, but the main problem was Lohit girls wings was totally isolated from the main hostel, that is the boys wing. It was co-ed, but it wasn't ideally co-ed, because it was firstly cut off. We have to travel a long distance in order to go to the mess. तो ऐसा था कि हम जब निकलते थे अपने हॉस्टल से बाहर तो इतना चल के हमें मेस में जाना होता था. ऐसा नहीं कि जस्ट वी केम डाउन स्टेयर्स और वहीं पे हमें मेस मिल गई. ऐसा नहीं है जैसा और हॉस्टल्स में होता है, जैसे बॉयज़ के साथ होता है इन लोहित बॉयज़ विंग. तो हमें थोड़ा चल के जाना पड़ता था, बट ठीक है, कोई नहीं. खाने के बाद वॉक हो जाती थी, खाने से पहले भूख और लग जाती थी. सो दिस इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट फॉर आवर हेल्थ. तो लोहित में वो थी. और लोहित में टीवी रूम, गेम्स रूम, ऑल्दो वी कैन एक्सेस इट, बट उसकी जो कंडीशन थी दैट वाज लाइक वी हैव टू गिव आवर नेम्स, वी हैव टू सबमिट आवर आई कार्ड्स एंड ऑल. तो वो हमें अपनी एंट्री करनी होती थी, और कभी कभी एक्सेस हमारा हटा भी देते थे विदाउट इवन टेलिंग अस. बस ये बताते थे बाद में कि करंटली यू आर नॉट अलाउड. तो बॉयज़ के लिए वो फैसिलिटीज़ बेसिकली बनाई गई थी. दोज फैसिलिटीज़ वरंट मेड फॉर गर्ल्स. गर्ल्स का कोई HMC भी नहीं था वहाँ पे. HMC इज़ द हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी, तो वो भी नहीं था. और
बॉयज़ को मिली हुई थी वहाँ पे, तो लोहित का ये था. Then I got shifted to Dhansiri. So Dhansiri is supposed to be a full-fledged girls hostel. तो उसके अंदर जब मैं गई तो फर्स्टली आई फाउंड इट टू बी अ जेल. थोड़ा बहुत जेल जैसी फीलिंग आ रही थी, थोड़ी वाइब आ रही थी जेल जैसी, बिकॉज कोविड हॉस्टल में रुकने के बाद. एंड लोहित वॉज डेफिनेटली वेरी एयरी. एंड जब आप बीच में जाते हो कॉरिडोर्स में एंड ऑल, तो इट्स वेरी एयरी. बट इन धनसिरी एज इट इज़ सपोज टू बी अ गर्ल्स हॉस्टल और बहुत पुराना बना हुआ है, तो इट इज़ ऑल कवर्ड. हवा का ज़रा सा भी स्कोप नहीं है, और थोड़ी बहुत हवा आती है तो वी फील लाइक वी आर ट्रैप्ड इन अ जेल. अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई डिडंट लाइक धनसिरी एट ऑल. तो धनसिरी में ये था. बट धनसिरी, द प्लस पॉइंट अबाउट धनसिरी इज it was meant to give accommodation to 2 people, so the rooms were quite big. It had full space of the beds, 2 beds, 2 chairs and 2 tables, everything. But in Lohit हमें ज़बरदस्ती इसके अंदर डाला गया था, तो it was very difficult to accommodate 2 people. We had to adjust in ways that we only know. तो वो चीज़ है लोहित की. एंड इफ़ वी कंपेयर धनसिरी, सो धनसिरी इज़ मेड फॉर डबल शेयर, और कुछ रूम्स उसके अंदर सिंगल शेयर भी है, विच इज़ ओनली गिवन टू 4th ईयरिtes एंड मे बी सम 3rd ईयरिtes. तो जब मैं वहाँ रहती थी तो ओनली 4th ईयरिtes लिव्ड इन सिंगल शेयर रूम्स, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स. और वॉशरूम्स का, इफ़ वी टॉक अबाउट वॉशरूम्स, देन इन लोहित वॉशरूम्स वर वेरी नाइस. It was good because it was attached. और धनसिरी में the washrooms aren't attached. आपको कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करने पड़ते हैं. एंड वॉशरूम्स की ऐसी एज सच कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग इज़ क्लीन, रोज़ क्लीन होता है, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मेंटेन कर रखा है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है. बट कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है दैट आई एम नॉट सपोज टू टेल यू राइट हेयर, बिकॉज वॉशरूम्स में कुछ दिक्कत हैं जो आप, आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू मैनेज विद इट और नॉट. तो वॉशरूम में फर्स्टली गर्ल्स वॉशरूम में जेट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड एक अच्छी चीज़ ये है कि जो बाथ स्टॉल्स हैं उसके अंदर ही गर्म पानी आता है, तो यू नीड नॉट फिल द वाटर एंड कैरी इट टू योर बाथ स्टॉल्स. लोहित में हमें दूर से पानी भर के लाना पड़ता था गर्म, और अपने बाथ स्टॉल्स में रखना पड़ता था लाके. तो धनसिरी में देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, सो यू कैन हैव योर बाथ देयर. तो ये एक प्लस पॉइंट है. सो एवरी हॉस्टल कम्स विद द प्रोज एंड कॉन्स. तो ऐसा नहीं कि सारे हॉस्टल्स में सारी फैसिलिटीज़ हैं, सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अबाउट वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल, वॉशिंग मशीन्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन बोथ द हॉस्टल्स, बोथ इन लोहित एंड बोथ इन धनसिरी. तो वो सब चीज़ें वॉशिंग मशीन्स के लिए प्रॉब्लम नहीं हुई. कभी कभी वॉशिंग मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉर्मल, घर पे भी हो जाती है ख़राब. एंड दैट टू इफ़ यू आर लिविंग इन लाइक सच अ पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स यूज़ कर रही हैं, सो सम गर्ल्स डू नॉट नो हाउ टू यूज़, कभी कभी रफ़ यूज़ हो जाता है. तो जनरली वॉशिंग मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, तो वो सही भी हो जाती हैं बाद में. तो वो वॉशिंग मशीन्स का था. एंड रिगार्डिंग द कॉमन फैसिलिटीज़ इन धनसिरी, तो धनसिरी में कॉमन फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलता है आपको. एवरीथिंग इज़ देयर बिकॉज इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड गर्ल्स हॉस्टल. तो उसके अंदर ये नहीं है कि दिस इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ नॉट माइन, तो वो नहीं रहता. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. धनसिरी की कैंटीन इज़ वेरी गुड, उसके अंदर पूरे में लाइटिंग लगी हुई है. तो इफ़ आई गेट अ चांस आई विल डू अ धनसिरी टूर, आई विल डू अ लोहित टूर. लोहित टूर तो हम नहीं कर सकते बिकॉज गर्ल्स का एक्सेस पूरा हटा दिया है. लाइक इट इज़ नॉट अ गर्ल्स हॉस्टल नाउ, इट इज़ सपोज टू बी अ बॉयज़ हॉस्टल नाउ. तो वो चेंज हो चुका है अब, तो अब वहाँ पे बॉयज़ रहते हैं डबल शेयर में. तो धनसिरी का ये था. बाकी फिर धनसिरी से मैं निकल के दिसांग में आ गई थी बिकॉज इट इज़ अ न्यूली बिल्ट हॉस्टल. हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था. So when I got shifted into Disang hostel, I fought the elections and I became the Gen Sec of Disang Girls Wing. So there's a particular HMC जिसके अंदर आपके secretaries होते हैं for different parts, technical secretary, cultural secretary and so on. तो I am the general secretary. तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. वी गॉट टू नो कि कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं, कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं हॉस्टल में, बिकॉज इट इज़ अ न्यूली बिल्ट हॉस्टल. अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर लाना बाकी है. तो दिसांग इज़ अ गुड हॉस्टल. इट इज़ अ वेरी गुड हॉस्टल बिकॉज सब चीज़ें नहीं हैं, सब फैसिलिटीज़ नहीं है. बट द पॉइंट इज़ कॉमन रूम्स एंड ऑल की दिक्कत है. अभी यहाँ पे कॉमन रूम्स अभी तक फुल फ्लेजेडली बने नहीं हैं, और जो बन गए हैं उसके अंदर बस यही थोड़ी बहुत लड़ाई रहती है कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड है, बॉयज़ आर नॉट अलाउड है. तो वो चीज़ें लगी रहेंगी. बट वी नो कि इन कमिंग डेज और कमिंग ईयर्स हम उसको पूरा अच्छे से बना लेंगे लाइक अदर हॉस्टल्स. कैंटीन बहुत अच्छी है दिसांग की भी. इट इज़ अ वेरी बिग कैंटीन एरिया. स्टेशनरी है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स रूम है,
we have the music room. These kind of facilities are available in almost all the hostels. Desang is a newly built hostel, तो इसके अंदर facilities आने में time लगेगा, but we have rooms for that and कुछ चीज़ें हमने लगा भी दी हैं, तो धीरे धीरे facilities आ जाएंगी and it will also become a very good hostel, which it is now according to me also. साइकिल शेड्स होते हैं हॉस्टल्स में, दिसांग में भी बन रहा है, तो साइकिल शेड्स में आप अपनी साइकिल रख सकते हो सो दैट आपकी साइकिल ख़राब ना हो, बिकॉज यहाँ का वेदर इज़ लाइक वेरी ह्यूमिड और बारिश कभी भी आ जाती है, तो बारिश की वजह से आपकी साइकिल ख़राब हो सकती है. तो वी हैव साइकिल शेड्स इन ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्टल्स, तो दिसांग में भी बन जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू मी इफ़ वी कंपेयर 3 hostels in which I live, तो सबसे पहले लोहित वॉज अ गुड हॉस्टल. इट वॉज डबल शेयर, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन 2 महीने के लिए आई लिव्ड इन सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑल्सो, तो इट वॉज द बेस्ट हॉस्टल अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज इट हैज़ अटैच वॉशरूम्स एज वेल. और मेरी रूममेट नहीं आई थी, तो आई गॉट टू लिव फॉर 2 months इन सिंगल ऑक्यूपेंसी, और सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए इट वॉज द बेस्ट हॉस्टल आई वुड से, बिकॉज अटैच वॉशरूम्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ है यार, कोई नहीं चल के खाने जाना होता है, इट्स ऑल राइट. मेरे को तो अच्छा लगता है, इट्स गुड फॉर माई हेल्थ. धनसिरी को मैं रेट करूँगी इन द 3rd पोजिशन, दिसांग इन द 2nd पोजिशन. दिसांग में आई हैव सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, द वॉशरूम्स आर वेरी गुड. आई विल सून ब्रिंग अ रूम टूर वीडियो. रूम साफ करना पड़ेगा पहले मुझे अपना, उसके लिए room tour video, hostel tour video, in which I'll show you the different facilities that are there in the Desang hostel, because it is my hostel now, so I am particularly interested in showing that also. But if you want कि मैं एक धनसिरी पे भी वीडियो बनाऊँ, लोहित I can't make because it's a boys hostel now. मैं किसी को बोल सकती हूँ बनाने के लिए, but I do not want कि like someone else to make it for me. तो ठीक है, if you want a video on Dhansiri as well, Desang I am bringing for sure, then do comment in the comment box below. तो I would be very happy to respond to those comments. और भी जब मैं रूम टूर वीडियो लाऊंगी तो आई विल टेलिंग यू कि कौन सी रूम्स में फैसिलिटीज़ होती हैं, कबोर्ड्स कैसे होते हैं, एसी होता है कि नहीं, फैंस कैसे होते हैं, एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एंड टेबल्स एंड ऑल एवरीथिंग. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.